channel. So today we are going to discuss exercise 9.4 of Fourier transformation, that is convolution theorem. First convolution क्या होता है वो term understand करते हैं. The convolution of two functions, कोई भी दो function का convolution, एक function ले लिया f of x and एक ले लिया g of x over the interval minus infinity to infinity is denoted by f star g. जो कॉन्वोल्यूशन है इसको हम डिनोट करते हैं f स्टार g से. इट इज डिफाइंड एज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f ऑफ u g ऑफ x माइनस u du. ऑल्सो f स्टार g इज इक्वल टू g स्टार f. तो इसका प्रूफ देखते हैं इस पार्ट का कि f स्टार g स्टार f के इक्वल होता है. सो वी नो दैट f स्टार g इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ u g ऑफ x माइनस u du. Here we will substitute x minus u is equal to v. So minus du is equal to d. When your u is minus infinity, u is equal to minus infinity, then v tends to plus infinity. क्योंकि minus minus plus. When u tends to infinity, v tends to minus infinity. So it will turn infinity to minus infinity f of u. u की वैल्यू आ जाएगी x minus v. g ऑफ x माइनस यू आ जाएगा v. du की जगह आ जाएगा माइनस डी. दैट इज इक्वल टू नेगेटिव बाहर लेके ये हम इंटीग्रल चेंज कर लेते हैं. आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f ऑफ x माइनस v g ऑफ v डी. सो अगर हम कंपेयर करें f स्टार g में जो g था उसके अंदर चेंज था माइनस का. यहाँ पे हमारे पास f के अंदर चेंज है तो f पीछे लिखा जाएगा एंड g आगे लिखा जाएगा. सो g स्टार f. So hence the result holds. Next we have the proof of convolution theorem. So convolution theorem हमारे पास क्या कहती है? If f of x and f of g of x are the Fourier transformation of fx and gx, means f of x का Fourier transformation है f of x, g of x का Fourier transformation है f g of x. Then Fourier transformation of convolution of f of x and g of x means Fourier transformation of convolution of these functions. This is the convolution is the product of Fourier transformation. So ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? Product of Fourier transformation individual terms. देखिए इसका प्रूफ हम किस टाइप से करेंगे. यहाँ पे मैंने f g लिखा है, f भी फंक्शन x का, g भी फंक्शन x का. So Fourier transformation of the function f of x star g of x is defined as minus infinity to infinity by definition e की power minus iota sx and जो भी function given है f of x star g of x dx. Now f star x and g star x की definition खोलते हैं by convolution. minus infinity to infinity e की power minus iota sx. This can be written as minus infinity to infinity f of u g of x minus u du into dx. Now we will change the order of integration. So you can write here changing order of integration. So देखिए du के रिस्पेक्ट में फंक्शन है. सो लिमिट्स क्योंकि सेम है, सो लिमिट्स चेंज करने में भी सेम ही रहेंगी. यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ x एंड du हम लिखेंगे बाहर एंड जो फंक्शन ऑफ u है उसको भी हमने सेपरेटली लिख लिया बाहर. नाउ यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x माइनस u को हमने पुट कर लिया t. सो dx की वैल्यू आ जाएगी dt. लिमिट्स विल रिमेन सेम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस आइटा x की जगह आ जाएगा u प्लस t g of t dx की जगह dt du as it is minus infinity से infinity f of u as it is. So it will come again minus infinity to infinity f of u e की पावर माइनस आइटा su, u की टर्म्स मैंने बाहर निकाल ली, e की पावर माइनस आइटा st g of t dt into dt. This can be written as Fourier transformation of the function g of x. यहाँ पे हम t वेरिएबल है इसको x में चेंज करेंगे. से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of u e की पावर माइनस आइटा su. दिस कैन बी रिटन एज Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन g of t की जगह हमने x लिख लिया क्योंकि t और x एक ही बात है डी.
Now Fourier transformation of the function g of x is constant minus infinity to infinity f of u e की पावर माइनस आइटा एस यू डी. This can be written as Fourier transformation of the function f of x. Again u का लिखा जाएगा लेकिन u और x एक ही बात है क्योंकि Fourier transformation इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास वेरिएबल के. तो हमारे पास आ जाएगा दोनों के प्रोडक्ट्स के इक्वल. Next topic we have Fourier transformation of the derivative. So Fourier transformation of derivatives में first theorem है, if the Fourier transformation of f of x is f bar s, then the Fourier transformation of f dash x is iota s f bar s. So देखिए Fourier transformation of the function f of x, it is given to you that माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आइटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बार एस बाय डेफिनेशन. नाउ वी हैव टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ डैश एक्स, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आइटा एस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स. नाउ विल इंटीग्रेट इट बाय पार्ट्स टेकिंग e raised to power iota sx as first function and this as second function. First function as it is derivative of second, so first function as it is integration of second, so integration से derivative cancel f of x. Limits हैं minus infinity to infinity, minus infinity to infinity derivative of first, so minus iota s e की power minus iota s. Integration of f dash x is f of x dx. So it is assumed that this value is 0 at infinity and minus infinity. So it is 0. Minus minus plus iota s minus infinity to infinity e की power iota sx f of x dx. So by definition this can part be written as f bar s into iota s. So यही पार्ट हमें प्रूव करना था. Next we have if f of x and first n minus 1 derivative vanishes away when x tends to plus minus infinity. Same condition कि जब यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स है वो वैनिश कर रहे हैं f of x पे भी और उसके डेरिवेटिव्स पे भी n minus 1 डेरिवेटिव्स पे, जब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आपके पास लिमिट गिवन है, then you have to find the Fourier transformation of nth derivative of the function by x raised to power n. You have to prove this part. So देखिए प्रूफ करते हैं. Fourier transformation of the function dnf upon dxn by definition minus infinity to infinity e की पावर iota sx d raised to power n f upon dx raised to power n into dx. So by this we can write first function as it is. इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव कैंसिल अपॉन dx n minus 1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस आइटा एस ई की पावर माइनस आइटा एस एक्स. इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है डी ऑफ एन माइनस 1 एफ डी एक्स ऑफ एन माइनस 1 डी एक्स. इसकी लिमिट्स है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. सो ये आ गया एन माइनस 1 डेरिवेटिव. एन माइनस 1 डेरिवेटिव पे ये वैनिश कर रहा है, सो ये टर्म बन जाएगी 0. वी विल लेफ्ट विथ प्लस आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. आइटा एस कॉमन निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है. e की पावर माइनस आइटा एस एक्स d of n minus 1 f upon dx of n minus 1 dx. Again integrating by parts, taking this as first function and this as second function. So first function as it is, integration of this term से आ जाएगा d of n minus 2, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा of the function f. Minus 0 से infinity डेरिवेटिव of first means iota s raised to the power simple d of n minus 2 upon dx of n minus 2 f. So again हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज ये n minus 2 डेरिवेटिव है. 0 से लेके n minus 1, n minus 1 से पीछे n minus 2, so 0. We will be left with iota s and यहाँ पे for iota s है, so iota s का स्क्वायर d of n minus 2 upon dx of n minus 2 f. So हमारे पास ये टर्म यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगी. Similar way, we will continue derivatives as possible. So हमारे पास लास्ट टर्म क्या है,
अगर हम कंटिन्यू करेंगे सेम हमारे पास इस टाइप से डेरिवेटिव, फर्स्ट में आया आयटा एस, फिर आयटा स्क्वायर, सो n टाइम्स करेंगे, सो आयटा एस की पावर n टाइम्स जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे d ऑफ n माइनस n अपॉन dx ऑफ n माइनस n f, एंड हमारे पास ये इंटीग्रेशन है प्रेजेंट यहाँ पे, देखिए क्या बनेगा, सो आ जाएगा आयटा एस की पावर n और ये इंटीग्रेशन में चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फंक्शन दे रखा है आपको f, ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ टू पावर आयटा एस एक्स f ऑफ x dx, सो इसको हम लिख सकते हैं f बार s आयटा s की पावर, सो दिस इज योर रिजल्ट, इसका जनरल रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर थर्ड, इफ द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f of x and f dash x exist, मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है एंड इनकी वैल्यू 0 है जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, देन वी हैव टू प्रूव दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f dash x is माइनस एस एफ सी एफ ऑफ एक्स, एंड कोसाइन का हमारे पास ये वैल्यू है, प्रूव करते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f dash x by definition 0 से infinity function into sine of sx dx. We will integrate it by parts. First function sine of sx as it is, integration of second, so it will become f of x, limits 0 से infinity, minus derivative of first, so sine sx का derivative cos sx into s, integration of second into dx. Now at infinity f of x, when x tends to infinity, it is given to you that it tends to 0, and at lower limit sine 0 is 0, so this complete term becomes 0, minus this term s into, this can be written as Fourier cosine transformation of the function f of x, hence the result holds. For the proof of second part, we will again apply the definition Fourier cosine transformation of the function f dash x is defined as 0 से infinity f dash x cos sx dx. Take cos x as first function and f dash x as second function. So integrating by parts, cos sx as it is, integration of second is f of x minus 0 से infinity cos sx का derivative sin sx into s minus, so it will become plus f of x dx. लिमिट्स है हमारे पास 0 से infinity. At infinity f tends to infinity, this term is 0, and at lower limit it will come minus of f of 0 plus s. This can be written as Fourier sine transformation of the function f of x. Hence the results hold. Now we have some note given in your book. First note is, देख देते हो क्या प्रूव करना है आपको. We have to prove that Fourier साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f डबल डैश x की वैल्यू होती है माइनस एस स्क्वायर एफ एस एफ ऑफ एक्स प्लस एस एफ जीरो. फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f डबल डैश x इज एस एफ डैश x minus f dash 0. So for the proof of both these parts, we will use these only. So basically हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में f of x को रिप्लेस करना है f dash x से. For this part हमें रिप्लेस करना है f of x को f dash x. So देखिए फर्स्ट रिडक्शन में जब हम रिप्लेस करेंगे f dash x आपको गिवन है, अब ये डैश है f of x को, देखो x के बाहर डैश है हमारे पास, f x को रिप्लेस करना है f dash x, तो डबल डैश हो जाएगा, डबल डैश होने के कारण ये बन जाएगा f डबल डैश x माइनस एस एफ सी, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है f डैश x. नाउ माइनस एस, अब यहाँ पे साइन कोसाइन वाला डेफिनेशन लगाएंगे, से आ जाएगा s एफ एस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एस एफ जीरो. तो ये हमें प्रूफ करना था इस पार्ट में. सिमिलरली यहाँ पे भी हम रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स से. सही, हमारे पास बन जाएगा एफ सी एफ डबल डैश एक्स राइट हैंड साइड में
रिप्लेस कर देंगे एफ डैश जीरो से, क्योंकि एफ डैश एक्स के अंदर जीरो पुट की गई है वैल्यू। ना इसकी वैल्यू पुट करते हैं, आ जाएगा एस, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से फर्स्ट पार्ट से, यह आ जाएगा माइनस एस एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो इट विल कम आउट माइनस एफ डैश जीरो। तो ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, माइनस एस स्क्वायर एफ सी बार में प्रूव करना था, ये मैंने स्टेटमेंट ही गलत लिखी है। तो आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर एफ सी ऑफ एक्स माइनस एफ डैश जीरो। तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स आएगा। ये हमारा रिजल्ट इस टाइप से प्रूव होगा। आपको एफ एक्स को एफ डैश एक्स से रिप्लेस करना है दोनों इक्वेशंस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो फॉर दिस हमें यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एफ ऑफ टी लिया ई की पावर माइनस एक्स टी फाइव टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर टी लेस देन जीरो हमने जीरो लिया। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी is defined as minus infinity to infinity e की पावर माइनस आएगा s, s की जगह यहाँ पे हम ले रहे हैं y, t f of t dt। से यहाँ पे फंक्शन हमारे पास ब्रेक हो जाएगा जीरो पे, से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस आइटा वाई टी। फंक्शन ऑफ t फॉर लेस देन जीरो इट इज डिफाइंड टू बी जीरो, एंड यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस आइटा वाई टी e की पावर माइनस एक्स टी फाइव ऑफ टी डी टी। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी एक्स प्लस आइटा वाई फाइव टी डी टी। हियर विल सब्स्टिट्यूट x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू एस। से आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आइटा टी फाइव ऑफ टी डी टी। दिस कैन बी रिटन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन फाइव ऑफ टी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट आता है पासवाल आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी पहले थ्योरम पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि एफ एस एंड जी ऑफ एस आर डिनोट द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ एस से, पहले इसको एफ बार एस से डिनोट करते थे। एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन g of x को हमने डिफाइन किया है g of s से। देन 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f of s gs ds की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f of x g बार x dx। तो एक तो हमारे पास ये पासवाल आइडेंटिटी है, एक और पासवाल आइडेंटिटी है हमारे पास इसी के अंदर। ये तो फर्स्ट है। सेकंड है हमारे पास 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी mod of f of s का होल स्क्वायर d of s इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी mod of f of x का होल स्क्वायर dx। अब इनके प्रूफ डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं। सो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f of x g बार x dx। इनवर्स लगा, देखिए g बार x का मतलब है g of x होता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f g बार x, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे बार का डिनोट क्या करते हैं, देखिए मैं आपको पहले बता दूं g of x और ये आ जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आइटा s t f s g बार s ds। लेकिन यहाँ पे g बार s नहीं गिवन, आपको गिवन है g of s, कैपिटल g of s ds। से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम इनवर्स फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कॉन्जुगेट का मतलब है ई की पावर बेसिकली प्लस होता है इनवर्स के अंदर फॉर्मूले में। सो जब हम बार लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ई की पावर माइनस आइटा एस टी जी ऑफ एस डी एस डी एक्स, ये कॉन्जुगेट का मतलब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आइटा एस टी माइनस जी बार एस डी एस डी एक्स। ये गिवन है। लिमिट्स क्योंकि सेम है तो सिंपली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की टर्म लिखते हैं ई की पावर, यहाँ पे हमने ना एक्स में डिफाइन करना है ना फंक्शन।
देखिए आपको x का गिवन है तो t नहीं आएगा, यहाँ x आएगा। dx और ds हमारे पास बाहर आ जाएगा, gs भी बाहर आ जाएगा, 1/2 पाई भी बाहर आ जाएगा, उससे आ जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी g of x. This can be written as Fourier transformation of the function f of x that is denoted by f of x. So ये हमारे पास g बार ऐसे है क्योंकि हमने यहाँ कॉन्जुगेट किया तो g बार आएगा. This can be written as Fourier transformation of the function f of s into ds. So हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इसकी प्रूव कर दी. सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, आप खुद ट्राई कीजिएगा. यहाँ पे आपको सिंपली g of x को रिप्लेस करना है f of x से. सो यहाँ पे g of x को रिप्लेस करेंगे f of x से, सो आ जाएगा f of x इंटू f बार x. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f बार s, f बार s. इसको लिख सकते हैं हम मोड ऑफ f of s बार का स्क्वायर. देखिए z इंटू z का कॉन्जुगेट होता है मोड ऑफ z का होल स्क्वायर. सिमिलरली इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं. सो हमारा प्रूफ हो जाएगा सिंपली. So rest of the topics of this we will do in the next video. Till then, thank you.